آئیے لے چلتے ہیں آپ کو ہندوستان کے صوبے بہار کے دربھنگا ضلع کے خرما قصبے میں، جہاں کے تالاب اور ہرے بھرے درخت خرما کی آب و ہوا کو تازہ رکھتے ہیں۔ خرما کا یہ مدرسہ، جسے بشارت العلوم کہتے ہیں، ریاست بہار کی علمی، روحانی اور مرکزی درسگاہ ہے۔ خرما قصبے میں جہاں سڑک کے ایک طرف یہ مسجد اور مدرسہ ہے تو دوسری طرف یہ مندر بھی ہے۔ جی ہاں، ایک ہی روڈ پر یہ دونوں مذہبی مقامات اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ خرما کے ہندو اور مسلمان آپس میں مل جل کر رہتے ہیں۔ یہ ہے وقت میڈیا۔ پیش خدمت ہے ہندوستان کے صوبے بہار کے ضلع دربھنگا کے خرما قصبے کا شاندار آل انڈیا مشاعرے کا ویڈیو۔ جی ہاں، یہ مشاعرہ جو خرما کی تاریخ کا اب تک کا سب سے بڑا مشاعرہ تھا، اسے سننے کے لیے لگ بھگ 10,000 لوگ تشریف لائے تھے۔ اس مشاعرے کو آرگنائز کیا نوجوان ویلفیئر سوسائٹی خرما دربھنگا نے۔ اس مشاعرے کو آرگنائز کرنے میں اپنا اہم رول ادا کیا اس مشاعرے کے کنوینر جناب شکیل انجم صاحب نے۔ جناب شکیل انجم صاحب نیک دل، ادب نواز شخص ہیں، جنہوں نے اس قصبے میں مشاعرے کی روایت کو زندہ رکھا ہے۔ آج سے 25 سال پہلے بھی انہوں نے ہی مشاعرہ آرگنائز کیا تھا۔ شکیل انجم صاحب یوں تو کاروبار کے سلسلے میں دہلی رہتے ہیں، لیکن وقت وقت پر خرما جا کر وہاں کے سماجی کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں۔ اس مشاعرے کے مہمان خصوصی رہے سابق مرکزی وزیر، کانگریس پارٹی کے جنرل سیکرٹری اور ترجمان، نیک دل، خوبصورت انسان، ادب نواز شخصیت جناب ڈاکٹر شکیل احمد صاحب۔ لڑکیوں کے دکھ عجب ہیں اور سکھ اس سے عجیب، لڑکیوں کے دکھ عجب ہیں اور سکھ اس سے عجیب، ہنس رہی ہیں اور کاجل بھیگتا ہے ساتھ ساتھ۔ یہ لڑکیوں کی زندگی ہے۔ ہندوستان کی لڑکی، ہندوستان کی ناری کو جتنا امتحان دینا پڑتا ہے، مردوں کو اتنا امتحان نہیں دینا پڑتا۔ ان کی زندگی بڑی آزمائش کی ہے۔ ایک چوکھٹ کو روتے ہوئے چھوڑنا پڑتا ہے، دوسری دہلیز کو مسکراتے ہوئے آباد کرنا پڑتا ہے، اجنبی لوگوں سے گلے ملنا پڑتا ہے، ایک غم کو بھولنا پڑتا ہے، دوسری مسرت کو گلے لگانا پڑتا ہے۔ یہ ہے زندگی، اور اس زندگی کو گزارتے ہوئے کھلی آنکھوں سے دنیا کو دیکھنا اور احساسات کو شعری پیکر میں ڈالنا کتنا مشکل کام ہے۔ آئیے شائستہ ثنا سے ملاقات کی جائے اور دیکھا جائے کہ شاعری کیا ہے، غزل کیا ہے، گیت کیا ہے۔ ایک ایسی شاعرہ جو پورے ہندوستان کے سامعین کے دلوں پر حکومت کرنے کا فن جانتی ہے، ایک ایسی شاعرہ جو ہندوستان کے باہر بھی جا کر اپنی اہمیت کو تسلیم کراتی ہے۔ شائستہ ثنا سے گزارش ہے کہ اپنے کلام سے نوازیں۔ السلام علیکم۔ پہلی بار میری حاضری ہوئی ہے آپ سبھی کے بیچ میں۔ کچھ شعر آپ کی خدمت میں حاضر کرنا چاہتی ہوں۔ شکیل انجمی صاحب کا حکم، میری حاضری۔ ڈاکٹر شکیل صاحب تشریف رکھتے ہیں، اور آج کے جتنے بھی ہمارے شورا کرام ہیں ان سب کی توجہ چاہتی ہوں۔ کچھ شعر آپ کی خدمت میں حاضر کرتی ہوں، پیش کرتی ہوں، دیکھیں گا۔ 4 مصرے حاضر کرتی ہوں۔ ایک آواز اٹھی ہندوستان میں، بہت ذہین سماتے ہیں، وہاں تک آپ پہنچیں گے، میں پڑھتی ہوں، دیکھیں آپ کا مزاج، اس علاقے کا مزاج، اور میرے یہ 4 مصرے پیش کرتی ہوں، دیکھیں۔ اے وطن تیری خاطر جان بھی لٹاتے ہیں، اے وطن تیری خاطر جان بھی لٹاتے ہیں، اور ترنگے کو اپنا ہم کفن بناتے ہیں، اور ترنگے کو اپنا اور
और कब हम कफन बनाते हैं। चौथे मिसरे पे कोई भी शख्स खामोश नहीं रहना चाहिए। पेश करती हूँ, देखें। आए वतन तेरी खातिर जान भी लुटाते हैं और तिरंगे को अपना हम कफन बनाते हैं। अपनी माँ समझते हैं मादरे वतन तुझे को और खुदाए वाहिद के आगे सर झुकाते हैं और खुदाए वाहिद के आगे सर झुकाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छा लगा, बड़ी खुशी हुई, आपने बड़ी मोहब्बतों से सुना, बहुत अच्छे से सुने मेरे ये चार मिसरे और हाजिर करती हूँ बतौर खास। देखें, पेश करती हूँ बतौर खास। देखें। जो अकड़ के चलते हैं इस जमीन पर रह कर, जो अकड़ के चलते हैं इस जमीन पर रह कर, रहमतों के दरवाजे उन पे बंद होते हैं। रहमतों के दरवाजे उन पे बंद होते हैं। कोई जाके बतला दे बेवकूफ लोगों से, सर झुकाने वाले ही सर बुलंद होते हैं। सर झुकाने वाले क्या कहने हैं, शाइस्ता जिंदाबाद, सर बुलंद होते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। चार मिसरे और हाजिर करती हूँ, देखें। उसके बाद गजल गीत का हुक्म होगा। गीत भी जितनी देर आप चाहेंगे, मैं आपके बीच में हूँ, पढ़ूंगी, पेश करती हूँ। देखें। चेहरे मासूम तो शाइस्ता, उनको पढ़ लेना भी तिलावत है, उनको पढ़ लेना भी तिलावत है। अपनी माँ बाप की तरफ जैसे प्यार से देखना इबादत है, प्यार से देखना इबादत है, प्यार से देखना इबादत है। बहुत बहुत शुक्रिया। एक मतला हाजिर करती हूँ बतौर खास। देखें। जान कैसा था नशा कि मेरे कदम, जान कैसा था नशा कि मेरे कदम राह में चलते चलते बहकने लगे, राह में चलते चलते बहकने लगे। उनके आने की जैसे ही आई खबर, उनके आने की जैसे ही आई खबर, खुद ब खुद मेरे कंगन खनकने लगे, खुद ब खुद मेरे कंगन खनकने लगे, खुद ब खुद मेरे कंगन खनकने लगे। और एक मतलब पढ़ती हूँ, देखें। इत्तेफाक इसको या फिर मुकद्दर कहें, दिल चाहा नहीं था मगर हो गया, दिल चाहा नहीं था मगर हो गया। ये करिश्मा भी शायद मोहब्बत का है, ये करिश्मा भी शायद मोहब्बत का है। एक मुसाफिर मेरा हम सफर हो गया, एक मुसाफिर मेरा। अरे शाइस्ता साहिबा, आइए आइए, अभी न जाओ छोड़ के कि दिल अभी भरा नहीं। आइए, तशरीफ लाइए। मैं बिल्कुल गीत पढ़ूंगी।
मैं पढ़ती हूँ। एक सेकंड रुक जाओ। मेरा ख्याल है ये खंबा जो है ये रकीब का काम कर रहा है। लोग चाहते हैं शायर या शायरा को भरपूर देखें, मुकम्मल तौर पर देखें, मगर ये खंबा हायल हो रहा है। लेकिन क्या कीजिएगा, कुछ मजबूरियां हर जगह होती हैं। मुशायरे की तहजीब की हिफाजत कीजिए। हाँ शाइस्ता साहिबा चलिए। मैं पेश करती हूँ, 4 मिसरे हाजिर करती हूँ, उसके बाद गजल गीत भी पढ़ूंगी इंशाल्लाह। पेश करती हूँ, देखिए। हर तरफ मन चले फिर रहे हैं, ये जितने मन चले हैं उन्हीं के लिए है। मैं पेश करती हूँ, देखिए। हर तरफ मन चले फिर रहे हैं, मंचलों का भरोसा नहीं है, जाने किसे खेत पर जाके बरसे, बादलों का भरोसा नहीं है, जाने किसे खेत पर जाके बरसे, बादलों का भरोसा नहीं है, ये मोहब्बत का रुख मोड़ देंगे, रास्ते में तुम्हें छोड़ देंगे, पागलों से न दिल को लगाना, पागलों का भरोसा नहीं है, पागलों से न दिल को लगाना, पागलों का भरोसा नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया। 4 मिसरे और हाजिर करती हूँ, बता रहे खास, देखिए। कोई न जान सके, कोई न जान सके ऐसा काम करे जाना, कोई न जान सके ऐसा काम करे जाना, नजर से होते हुए दिल में तुम उतरे जाना, नजर से होते हुए दिल में तुम उतरे जाना, तुम्हारे दिल के इशारे को मैं समझ लूंगी, तुम्हारे दिल के इशारे को मैं समझ लूंगी, बस इतना करना कि हंसते हुए गुजरे जाना, बस इतना करना कि हंसते हुए गुजरे जाना, कोई ना जान सके ऐसा काम करे जाना। बहुत बहुत शुक्रिया। एक गजल आप सबकी खिदमत में हाजिर करना चाहती हूँ। इसका इको थोड़ा कम कर दीजिए, माइक वाले भैया जहाँ भी हैं थोड़ा सा कम कर दीजिए। इजाजत है गजल पढ़ूं मैं, मतला हाजिर करती हूँ, बता रखा है। मैं बिल्कुल गीत भी पढ़ूंगी, आप इतना मत चिल्लाइए। पेश करती हूँ, देखिए। शराफत के उसूल से बगावत करने लगते हैं, शराफत के उसूलों से, शराफत के उसूलों से बगावत करने लगते हैं, बगावत करने लगते हैं, पढ़े लिखे भी महफिल में शरारत करने लगते हैं, पढ़े लिखे भी महफिल में शरारत करने लगते हैं, शराफत के उसूलों से। और ये शेर भी हाजिर करती हूँ, देखें। ये कैसा दौर आया है कि अब इस दौर में लड़के, ये कैसा दौर आया है कि अब इस दौर में लड़के, कि अब इस दौर में लड़के जवां होते नहीं हैं और मोहब्बत करने लगते हैं, जवां होते नहीं हैं और मोहब्बत करने लगते हैं, शराफत के उसूलों से। और ये शेर भी आप सबकी अदालत में रखती हूँ, समाप्त करें। शराफत के उसूलों से तेरे गम को संभाला है, अमानत की तरह मैंने,
गम को संभाला है अमानत की तरह मैंने, अमानत की तरह मैंने, मगर आंसू अमानत में खयानत करने लगते हैं, मगर आंसू अमानत में खयानत करने लगते हैं, पढ़े लिखे भी महफिल में। और गजल का ये शेर हाजिर करती हूँ, देखिए। खुदा के बंदों को शायद खुदा का डर नहीं होता, खुदा के बंदों को शायद खुदा का डर नहीं होता, खुदा का डर नहीं होता, नमाज आती नहीं है और इमामत करने लगते हैं, नमाज आती नहीं है और इमामत करने लगते हैं, पढ़े लिखे भी महफिल में। और हजरत मेरी गजल का ये शेर आप सबकी अदालत में रखती हूँ, आप सब तक पहुँचाती हूँ। डॉक्टर शकील साहब तशरीफ रखते हैं, इनके हवाले से आप सब तक ये शेर पहुँचाती हूँ, पेश करती हूँ, देखिएगा। पढ़े लिखे भी महफिल में किताबें और भी उतरे हैं, लेकिन मेरे कुरान की किताबें और भी उतरी हैं, लेकिन मेरे कुरान की किताबें और भी उतरी हैं, लेकिन मेरे कुरान की ये खूबी है कि अंधे भी तिलावत करने लगते हैं, ये खूबी है। बहुत अच्छे शाइस्ता सन्ना साहिबा, जिंदाबाद, क्या कहने हैं। बड़ी मोहब्बत से आप लोगों ने सुना। किसी शायरा को जो मेहमान आपकी है वही इज्जत आपने दिया जिसकी हमें उम्मीद थी। बड़े एतमाद से, बड़े खुलूस से उनके एक एक शेर को आपने सुना। अब आइए, शाइस्ता साहिबा ने जो प्यारा एक माहौल बनाया, अब मैं चाहता हूं कि जिंदगी को कहकों की भी जरूरत है। हमारा व्हाट्सएप नंबर है और कॉन्टेक्ट नंबर है 9997640286। ये पूरा मुशायरा आप हमारी वेबसाइट mushairalive.com पर जाकर देख सकते हैं, या फिर हमारे यूट्यूब अकाउंट पर आप विजिट कर सकते हैं। हमारा यूट्यूब अकाउंट विजिट करने के लिए आप हमारी वेबसाइट mushairalive.com पर जा सकते हैं। फिर किसी शहर से किसी और मुशायरे को आप तक पहुंचाएंगे। कैमरा पर्सन हसन के साथ शफीक खान, वक्त मीडिया के लिए।